My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another important session on number system. In this session, we will be discussing about factors. So what is a factor? What is a factor? A factor, by definition, is a number which divides another number perfectly. Dividing perfectly means leaving no remainder. Leaving no remainder. For example, if we take number 12, 1, 2, 4, 3 तो मिस ही हो गया. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are factors of 12. Factors of 12. Total 6 number of factors. ठीक है. और always a factor pair, there is a factor pair that makes the number itself. So 12 can be composed by 1 and 12 or 2 and 6 or 3 and 4. So total there are 3 factor pairs जिससे कि हम 12 को कंपोज कर सकते हैं. Isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं. Let us say 100. So 100 can be written as 1 into 100 or 2 into 50 or 4 into 25, 5 into 20 और 10 into 10. So number of factors कितने हो गए 100 के? Number of unique factors total 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 4 factors, 100, 50, 25, 20, 4, 4, 8 और 10, 9 factors in total. Because 10 दो बार रिपीट हो रहा है लास्ट वाले प्रोडक्ट में. नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 9. ठीक है. बट अगर हमारा नंबर बहुत बड़ा होगा तो लॉजिक तो पता होना चाहिए कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस से वी हैव अ नंबर 16. सबसे पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं. 16 क्या है? दिस इज 2 to the power 4. 2 to the power 4. फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? 2 to the power 0 इसको डिवाइड करेगा, 2 to the power 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 का स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, 2 का क्यूब डिवाइड करेगा, 2 to the power 4 भी डिवाइड करेगा. यानी कि नंबर्स हमारे 1, 2, 4, 8 एंड 16. दीज विल बी द फैक्टर्स. यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 5 फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से 125. 125 इज 5 क्यूब. तो कौन से नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे? 5 to the power 0 डिवाइड करेगा, 5 to the power 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब. 5 to the power 4 भी डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, बिकॉज पावर ऑफ 1 ही ज्यादा होगी हमारे नंबर से. ठीक है. सो डेफिनेटली देयर विल बी 4 फैक्टर्स. 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब. टोटल 4 फैक्टर्स आर देयर. इज दिस क्लियर? ठीक है. सो अगेन एक बार 100 को रिविजिट करते हैं. 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 100 हमारा है 10 स्क्वायर्ड विच इज 10 into 10. या फिर प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखें. सो दिस विल बी 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. ओके. सो factor of 100 will be that number which divides 100 perfectly. Which divides 100 perfectly. है कि नहीं? So कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं? If we take 2 का पावर 0, तो ये तो 100 को perfectly डिवाइड करेगा बिकॉज 2 का पावर 0 ले रहे हैं. 2 का पावर 1 will also divide 100 perfectly. 2 स्क्वायर. ये सारे नंबर्स चलेंगे हमारे. Similarly, if we take 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2, ये सारे नंबर्स भी हमारे 100 को डिवाइड करेंगे. 100 के फैक्टर्स होंगे. और अगर हम इनका कोई कॉम्बिनेशन यूज करें तो वो भी तो डिवाइड करेगा 100 को परफेक्टली. सो फॉर एग्जांपल इफ यू यूज 2 to the power 0 into 5 to the power 0 which is equal to 1. 1 into 1 यानी 1 आ जाएगा. So this will be a factor of 100.
और वी कैन यूज 2 to the power 0 into 5 to the power 1. So that is equal to 5. ये भी तो फैक्टर होगा 100 का, और 2 to the power 0 into 5 square, which is 25, another factor of 100. Now we can take 2 to the power 1, so 2 to the power 1 into 5 to the power 0, which is 2, another factor of 100. 2 to the power 1 into 5 to the power 1, that is 2 into 5, 10. 2 to the power 1 into 5 square, so 25 into 2, 50. Now we'll switch to 2 square, 2 to the power 2 into 5 to the power 0, that is 4. 2 to the power 2 into 5 to the power 1, 4 into 5, 20. And last but not the least, 2 to the power 2 into 5 to the power 2, which is the number itself, 100. Total number of factors हमारे आ गए 9. And this is how the numbers are made up. This is how the factors are made up. क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, total number of factors are 9. So to summarize the concept, factors में क्योंकि हमारा जो नंबर है उसमें है 2 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ओके, सो जो फैक्टर होगा उसमें 2 का पावर विल ईदर बी 2 और लेस देन 2, और पॉजिटिव पावर ही रहेगा. सो या तो 2 का पावर 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा. यानी कि पॉसिबिलिटीज कितना हुआ? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 2. सिमिलरली 5 का पावर भी या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा. तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 5. टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 3 into 3, दैट इज इक्वल टू 9. ओके, तो हमारा 2 का पावर विल बी ईदर 2 और 1 और 0, या बेसिकली 2 का पावर अगर n है हमारा, इस केस में अगर इन जनरल हमारा एक नंबर होता 2 to the power m into 5 to the power n, तो उस नंबर के फैक्टर्स में 2 का पावर कैन रेंज फ्रॉम 0 to m. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, टिल m. तो फ्रॉम 0 to m टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना होगा? m plus 1. तो देयर आर m plus 1 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 2. सिमिलरली 5 का पावर कैन रेंज फ्रॉम 0 to n, यानी कि देयर आर n plus 1 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 5. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी m plus 1 into n plus 1. दैट विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी सबसे क्रूशियल बात है जिसको अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एंड दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. The theorem says that any number that is greater than 1, बोल रहा हूं ग्रेटर देन और बना रहा हूं साइन लेस देन का, any number greater than 1 can be uniquely factorized to its prime factors. Any number that is greater than 1 can be uniquely factorized to its prime factors. What does that imply? कि अगर हमारा नंबर हमने लिया है let us say 200, तो 200 क्या है? This is 2 into 100, यानी कि 8 into 25, which is 2 to the power 3 into 5 square. So this is the only way in which we can factorize the number. We can write the product of 2 cube and 5 square, that is 200. तो 200 को सिर्फ और सिर्फ ऐसे हम यूनिकली प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे कि हम इसको 2 स्क्वायर इंटू समथिंग सम प्राइम का स्क्वायर लिख सकते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इफ 200 इज बीइंग रिटन एज p1 टू द पावर a इंटू p2 टू द पावर b, सो दिस मस्ट बी यूनिक. ये हमेशा हर एक केस में यूनिक होगा. एंड दिस थ्योरम इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग 1 एज अ प्राइम नंबर. ठीक है, सो हमारा 200 को या किसी भी नंबर को दैट इज ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली फैक्टराइज्ड टू इट्स प्राइम फैक्टर्स. और जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना होगा तो हमें हमेशा हर एक नंबर के लिए सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स का पावर. जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल 200 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 10 स्क्वायर. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट अगर यहां पे तुमने लॉजिक लगा दिया कि 2 की पावर की पॉसिबिलिटीज कितना होगा, या तो 2 का पावर 0 होगा, या 2 का पावर 1 होगा.
10 का पावर 0 होगा, 10 का पावर 1 होगा, 10 स्क्वायर होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3, 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। सबसे पहले हमें नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा? 2 की पावर के लिए पॉसिबिलिटीज है फ्रॉम 0 1 2 3, 4 पॉसिबिलिटीज है, और 5 की पावर के लिए पॉसिबिलिटीज है 3, तो 4 इंटू 3 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 12। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 12। इसी बात को अगर हम जनरलाइज करें, सो इफ देयर इज अ नंबर n which can be written as prime 1 to the power a into prime 2 to the power b into prime 3 to the power c, then number of factors will be a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, बिकॉज प्राइम नंबर 1 की पावर हमारी 0 हो सकती है, a बोल रहा हूं 1 हो सकती है, टिल a हो सकती है। सिमिलरली प्राइम नंबर 2 की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, टिल b हो सकती है, मैक्सिमम b हो सकती है। यानी कि प्राइम नंबर a के लिए पॉसिबिलिटीज हो गई a प्लस 1, b के लिए हो गई, प्राइम नंबर 2 के लिए हो गई b प्लस 1, प्राइम नंबर 3 की पावर हमारी 0 से लेके c तक हो सकती है। सो पॉसिबिलिटीज आर c प्लस 1। सो टोटल केसेस विल बी a प्लस 1 into b प्लस 1 into c प्लस 1। ओके, एंड दिस इंक्लूड्स 1 and n एज वेल। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें 1 और n को रिमूव करना पड़े तो उस केस में -2 कर दोगे, या सिर्फ n को रिमूव करना पड़े कि नंबर ऑफ फैक्टर्स लेस देन n, तो आंसर विल बी a प्लस 1 into b प्लस 1 into c प्लस 1 -1। ओके, ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से द नंबर इज 240। So how many factors will be there for 240? 240 is 24 into 10 और 8 into 3 into 10। 8 हो गया 2 का क्यूब, 3 to power 1, और 10 है 2 into 5 यानी 2 to the power 1 into 5 to the power 1। तो 2 की पावर्स को एडअप कर लोगे, दिस विल बी 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 2 की पावर के लिए 5 पॉसिबिलिटीज, 4 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1, so that will be 20 factors। 20 factors will be there। ओके, अब जो फैक्टर्स होंगे हमारे उनमें 2 की पावर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4। 3 की पावर विल बी इधर 0 और 1, 5 to the power will be either 0 or 1। Now if the question is कि we need to find out odd factors of 240। First question is we need to find out odd factors of 240 and second question is we need to find out even factors of 240। Odd factors and even factors। Odd factors क्या होंगे? Odd factors are those factors which are not divisible by 2। नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अगर एक नंबर हमारा 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो उसमें पावर 2 का कितना होना चाहिए? इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 देन पावर ऑफ 2 मस्ट बी 0। पावर ऑफ 2 मस्ट बी 0। तो कितने ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जिनके पावर ऑफ 2 0 होगा? यानी कि पावर ऑफ 2 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड फैक्टर्स में एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इट मस्ट बी 0। 3 की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 की पावर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 की पावर 0 होना चाहिए। 2 की पावर 0 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? ऑड। 3 की पावर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, 5 की पावर के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 की पावर के लिए सिर्फ एक है, यानी कि ऑड फैक्टर्स विल बी 2 टू द पावर विल बी 0, 3 टू द पावर कैन बी 0, 3 टू द पावर कैन बी 1, 5 टू द पावर कैन बी 0, 5 टू द पावर कैन बी 1। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया? 1 into 2 into 2, टोटल फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 4। 4 फैक्टर्स विल बी देयर which are odd factors, which are odd factors। Now coming to even factors, there are two ways to think about it। Either calculate them और total factors में से, total factors तो हम निकाल चुके हैं, subtract odd factors, तो total minus odd factors will also be equal to even factors। तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, इवन फैक्टर्स चाहिए यानी कि 2 का पावर मस्ट नॉट बी 0, तो 2 टू द पावर n है अगर पावर ऑफ 2 तो n मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए पावर, बाकी सब कुछ चलेगा, यानी कि फॉर इवन फैक्टर्स 2 का पावर कैन बी 1, 2, 3 और 4, ऑल दीज केसेस आर पॉसिबल। सो 2 की पावर के लिए देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4। 3 की पावर के लिए पॉसिबिलिटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, 5 की पावर में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4 इंटू 2 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 16, 16 इवन फैक्टर्स होंगे, 4 ऑड फैक्टर्स, 16 इवन, टोटल 20 फैक्टर्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है, इसी बात को समझने का एक और तरीका है, एक और अप्रोच है, उसको भी समझते हैं। 240 वॉज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। नाउ अगर अब हमें ऑड फैक्टर्स चाहिए, इन द फर्स्ट केस वी नीड ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स के लिए 2 की पावर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ बाकी नंबर से मतलब है, ठीक है, बिकॉज 2 का पावर हमें 0 चाहिए, 2 की पावर तो फिक्स्ड हो गई, तो पावर ऑफ 2 इज फिक्स्ड, सिंगल केस है, तो भूल जाओ पावर ऑफ 2 को, पावर ऑफ 2 को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने पावर ऑफ 2 तो फिक्स कर दिया। बचे हुए नंबर के बारे में सोचो, विच इज 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 के। 3 की पावर के लिए 2 केसेस हैं, 1 प्लस 1, और 5 की पावर के लिए भी 2 केसेस हैं, 1 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 4 फैक्टर्स। बिकॉज 2 की पावर हमने फिक्स कर दिया, तो अब इमैटेरियल है, 2 की पावर के बारे में सोचना ही नहीं है, बचे हुए नंबर के बारे में सोचो। ओके, सेकेंड केस, जबकि हमें चाहिए थे इवन फैक्टर्स, अगर हमें इवन फैक्टर्स चाहिए तो ऑल द इवन फैक्टर्स विल बी इन द फॉर्म 2 का मल्टीपल, ठीक है, 2 का मल्टीपल के फॉर्म में होंगे, तो कैन यू राइट 240, 240 को हम लिख सकते हैं, 240 कैन बी रिटन एज दिस इज 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 2 की पावर 1 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2 क्यूब, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, तो अब एक 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसको हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, ठीक है, बिकॉज वी डेफिनेटली नीड 1, 2। अब इसके बाद में अंदर हमारा 2 का पावर इस नंबर के फैक्टर्स ले लो, 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, क्योंकि अब अगर हमारा 2 टू पावर 0 भी आने वाला है तो भी हमारे पास एक 2 को तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है, तो नंबर हमारा डेफिनेटली अब इवन बनेगा। अगर हमारा अंदर वाले नंबर का फैक्टर हम 1 भी लेंगे तब भी हमारा नंबर जो रिजल्टेंट नंबर है वो 2 ही बनेगा, वो इवन बनेगा, वो डिविजिबल बाई 2 होगा, बिकॉज 2 को हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। सो नॉट टेक टोटल फैक्टर्स ऑफ द नंबर इनसाइड। क्या लॉजिक समझते हो? टोटल फैक्टर्स ऑफ द नंबर इनसाइड, तो नंबर इनसाइड के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 है, यानी कि 0 से लेकर 3 तक 4 पॉसिबिलिटीज है, 3 की पावर 1 है, 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 टू पावर 0 एंड 3 टू पावर 1, और 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 और 0 2 पॉसिबिलिटीज, 4 इंटू 2 इंटू 2 16 फैक्टर्स विल बी देयर विच आर इवन फैक्टर्स, 16 फैक्टर्स हमारे होंगे इवन फैक्टर्स। ओके, क्लियर? Another example, let us say number is 750. So find the number of total factors. First, second, even factors. Third, factors divisible by 3 but not 5. Factors that are divisible by 3 but not divisible by 5. सबसे पहले 750 को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 750 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इंटू 10, 5 का स्क्वायर और 10 में भी 5 है, 5 क्यूब हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 क्यूब। ओके, सबसे पहला टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे? टोटल फैक्टर्स भी 2 की पावर कितनी है? 1 है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 16 फैक्टर्स टू इन टोटल। सेकेंड केस, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 2 की पावर तो 1 ही है सिर्फ,
ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए, 2 को बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा वैल्यू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 क्यूब। ओके, तो कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? फैक्टर्स विल बी 3 का पावर 0 1 2, 5 का पावर 0 1 2 3 4, 2 इंटू 4 8 फैक्टर्स आर इवन फैक्टर्स। भैया तो ऐसे सोच लेते, 2 की पावर 1 फिक्स्ड है, 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज 0 पे ऑड आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 फिक्स्ड है बिकॉज 1 से बड़ी पावर भी हम नहीं ले सकते, 2 की पावर 1 ही आ रही है 750 में, तो 2 की पावर 1 फिक्स्ड है, 2 की पावर के लिए एक पॉसिबिलिटी, 3 की पावर के लिए 2, 5 की पावर के लिए 4, 1 इंटू 2 इंटू 4, टोटल फैक्टर्स आर 8। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 5, यानी कि 3 से डिविजिबल तो होना चाहिए फैक्टर को, बट 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एंड इफ वी नीड फैक्टर हैज टू बी डिविजिबल बाई 3, तो 3 टू पावर मस्ट नॉट बी 0, 3 का पावर 0 नहीं होना चाहिए, और 3 का पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है इस क्वेश्चन, इस नंबर में 750 में 1 हो सकता है, तो 3 का पावर मस्ट बी 1, 2 का पावर कैन बी एनी नंबर, 0 हो सकता है 1 हो सकता है, चलेगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होना है, यानी कि 5 का पावर मस्ट बी 0, तो 3 की पावर के लिए एग्जैक्टली एक पॉसिबिलिटी बचता है, 5 की पावर के लिए देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0 यानी कि 3। सेकंड फैक्टर होगा 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 विच इज 6। So only 2 factors are there which are divisible by 3 but not by 5. Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं। Let us say the number n is 2 to the power 5 into 3 cube into 15 to the power 4. This is our number. First, total factors. Second, factors. Divisible by 45 but not by 12. फैक्टर्स डिविजिबल बाई 45 बट नॉट बाई 12, तो ऐसे कितने फैक्टर्स आएंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब यहां पे गलती बहुत लोगों से हो सकती है, पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो, ठीक है। नंबर एन है हमारा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 15 टू द पावर 4। अब यहां पे गलती क्या हो सकता है कि तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना यहीं पे सॉल्व कर दो, और अगर यहीं पे सॉल्व कर दिया और आंसर निकाल दिया 6 इंटू 4 इंटू 5, दैट विल बी एन एब्सोल्युटली टेरिबली रॉन्ग आंसर, कतई गलत आंसर होगा। बिकॉज सबसे पहले हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सारे के सारे फैक्टर्स को, बिकॉज 15 क्या है, 15 इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो पहले इसको प्राइम में कन्वर्ट करोगे। सो n विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 टू द होल पावर 4, तो इफेक्टिवली बन जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 4, 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4। अब हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कर सकते हैं, टोटल फैक्टर्स कितना आ जाएगा? टोटल फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2 का पावर के लिए पॉसिबिलिटीज है फ्रॉम 0 टू 5 6, 3 की पावर के लिए 7 प्लस 1 8, और 5 की पावर के लिए 4 प्लस 1 5, तो 6 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40 इंटू 6, 240 फैक्टर्स आर देयर, 240 factors are there. Second question is very interesting. Factors that are divisible by 45 but not by 12. Factors divisible by 45 but not by 12. और नंबर हमारा क्या है? 2 to the power 5, 3 to the power 7, 5 to the power 4. 45 से डिविजिबल होना है नंबर को, बट 12 से डिविजिबल नहीं होना है। 45 क्या है? 45 इज 9 इंटू 5 विच इज 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, बट 12 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और 12 क्या है? 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। ओके, सो अगर हमें नंबर को 45 से डिविजिबल चाहिए, दैट इंप्लाइज दैट नंबर मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ दिस, मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 45। ये तो क्लियर है। बट 12 से डिविजिबल नहीं होना है, यानी कि मस्ट
must not be a multiple of 12. अब 3 की पावर तो 2 ऑलरेडी है, बिकॉज अगर मैं 45 का मल्टीपल होना है तो 3 का पावर 2 जरूर होगा, 5 का पावर 1 जरूर होगा, बट हमारा क्वेश्चन 12 में क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1, यानी कि हमें 2 की पावर को लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज 3 की पावर पर लिमिट लगा नहीं सकते, 3 का पावर 2 तो होना चाहिए, 2 की पावर पर लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 परमिसिबल, पावर 2 दैट इज परमिसिबल विल बी इक्वल टू 1 ओनली, बिकॉज 3 का स्क्वायर तो ऑलरेडी होगा हमारे सारे फैक्टर्स में जो कि डिविजिबल बाई 45 होंगे, बट अगर 2 का पावर सिर्फ 1 रहेगा तो वो कभी भी 12 से डिविजिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज टू बी डिविजिबल बाई 12 देयर मस्ट बी पावर ऑफ 3 एंड 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 होना चाहिए, बट वो हम परमिट ही नहीं करेंगे, और अगर परमिट नहीं करेंगे तो कभी भी डिविजिबल बाई 12 नहीं मिलने वाला हमको, ठीक है, नहीं मिलने वाला, और इवन होना जरूरी नहीं है, यानी कि 2 की पावर 0 भी अलाउड है, 0 भी अलाउड है, 1 भी अलाउड है, बस 2 की पावर 2 या फिर हायर पावर्स अलाउड नहीं होगा, यानी कि यहां पे केसेस क्या बनेंगे हमारे, 2 की पावर दैट आर अलाउड विल बी 2 का पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1, ये दोनों पावर्स चलेगा, इससे हायर पावर्स नहीं चलेगी, 3 का पावर मस्ट बी एटलीस्ट 2, बिकॉज हमें 45 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 का पावर कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सिमिलरली 5 टू द पावर मस्ट बी एटलीस्ट 1, तो 5 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5, 5 एक सेकेंड 5 टू द पावर 4 तक ही तो है, ठीक है, सो ये केसेस बनेंगे हमारे टोटल, तो कितने फैक्टर्स होंगे, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, 2 पॉसिबिलिटीज, 2 इंटू 6 इंटू 4, तो टोटल 48 फैक्टर्स विल बी देयर, 48 फैक्टर्स विल बी देयर, ओके। इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि n हमारा ऑलरेडी है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4, और हमें चाहिए 45 का मल्टीपल, तो 45 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली इट विल बी इन द फॉर्म 45 का मल्टीपल, 45 इंटू सम नंबर, ओके, तो 45 को तो कॉमन ले लो पहले ही, 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 क्यूब, बट एडिशनली हमें 12 का मल्टीपल नहीं चाहिए, और 3 का पावर 1 से ज्यादा तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है, यानी कि 2 का पावर को हमें लिमिट करना पड़ेगा, 2 की पावर दैट आर परमिटेड मस्ट बी 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1, यानी कि ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, 3 की पावर के लिए सारे केसेस पॉसिबल होंगे, तो फ्रॉम 0 टू 5 6 केसेस, एंड 5 की पावर के लिए भी सारे केसेस पॉसिबल होंगे, फ्रॉम 5 टू द पावर 0 टू 5 टू पावर 3, तो 2 इंटू 6 इंटू 4 48 फैक्टर्स विल बी देयर, क्लियर है, ओके, क्या ये बात समझ में आता है? अब यहीं पे डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे फॉर द सेम नंबर, फॉर द नंबर गिवन नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे, सो इफ द नंबर इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4, so find number of factors that are perfect squares, perfect squares, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमें, पावर मस्ट बी इवन, पावर ऑफ एनी इंटीजर, पावर ऑफ ऑल प्राइम्स मस्ट बी इवन, बिकॉज सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, वो किया हुआ है हमने ऑलरेडी, तो पावर ऑफ ऑल प्राइम्स मस्ट बी इवन, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सो ऑड पावर्स अलाउड ही नहीं होंगी नंबर में हमारे, ठीक है, सारी पावर्स इवन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर पावर्स इवन है, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 8, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 6 क्यूब, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, विल दिस बी अ परफेक्ट स्क्वायर? देखो डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर देना है कि नहीं होगा, पहले चेक करोगे, बिकॉज अभी ये प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 6 क्यूब इज व्हाट, 2 इंटू 3 का होल क्यूब,
तो इफेक्टिवली हमारा 2 का पावर आ जाएगा 6, 3 का पावर भी आ जाएगा 6, तो यस दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें पावर चाहिए इवन सारे प्राइम नंबर्स की। तो 2 टू पावर 5 है, यानी कि कौन सी पावर 2 की अलाउड होंगी? 2 की पावर कैन बी 0, 2 का पावर कैन बी 2, 2 का पावर कैन बी 4। सिमिलरली 3 का पावर कैन बी 0, 3 का पावर कैन बी 2, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 6, और 5 टू द पावर कैन बी 0 और 2 और 4। तो 3 possibilities for the power of 2, 4 for the power of 3 and 3 for the power of 5. So 3 into 4 into 3, that is 36 factors will be there which are perfect squares. 36 factors which are perfect squares. Okay. ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? बाय द सेम लॉजिक अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 5 into 3 to the power 7 into 5 to the power 4. So number of factors that are perfect cubes. That are perfect cubes. And if we need perfect cube factors, that implies the power, all powers of prime must be a multiple of 3. Must be a multiple of 3. So, for example, 2 cube into 3 cube, that is a perfect cube. 2 cube into 3 to the power 6, that is also a perfect cube. And so on. So, अगर 2 की पावर्स के लिए बात करेंगे, क्या क्या केसेस पॉसिबल होंगे? 2 का पावर कैन बी 0, बिकॉज 0 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, और 2 का पावर कैन बी 3. 3 की पावर के लिए 3 टू द पावर 0, 3 टू पावर 3 एंड 3 टू पावर 6, एंड 5 की पावर के लिए 5 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 3. तो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे हमारे 2 possibilities for the power of 2, 3 possibilities for the power of 3, 2 possibilities for the power of 5, 2 into 3 into 2, that will be total 12 factors. 12 factors that are perfect cubes. क्या ये लॉजिक क्लियर है? ओके, ठीक है. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. नेक्स्ट सेशन में विल बी एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स भी और करेंगे इन कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.